Now further, page number 4. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there, ahead of him. He turned to look on other side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. So finally, after reaching the roundabout, when he could not control, when he could not resist to go there on the swing, he called for his parents. But to his surprise, his parents were not देयर, ना वो उसके साथ थे, ना वो उसके आगे थे, पीछे थे, उसको कहीं उसके पेरेंट्स नहीं दिखे. A full deep cry rose within his dry throat, and within a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His face flushed, was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. "Father, mother!" he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. अब वो इतना घबरा गया ये देखकर कि कहीं उसके पेरेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो वो जहाँ खड़ा था, इस डर से उसको ऐसा झटका लगा कि ही स्टार्टेड रनिंग. वो पहले एक डायरेक्शन में गया, वापस आया, दूसरे डायरेक्शन में गया, उसको कुछ नहीं पता चल रहा था वो कहाँ जाए, क्या करे, कहाँ अपने पेरेंट्स को ढूंढे, बिकॉज द फेयर वॉज सो क्राउडेड. उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, दूर दूर तक सिर्फ मैन विमेन ही दिख रहे थे, भीड़ ही दिखाई दे रही थी. टीयर्स कॉन्स्टेंटली रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, विच इज़ वेरी नेचुरल, एंड द ओनली थिंग ही वॉज कॉलिंग आउट इन दैट पेन वॉज for his father and mother. Having, और इसी सब के बीच में उसका टर्बन खुल गया, वो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा तो उसके कपड़े गंदे हो गए, बट उसको किसी चीज़ का इस समय फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे बस किसी तरह से अपने पेरेंट्स को ढूंढना था. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men, women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to just laugh and talk for the sake of laughing and talking. अब ऐसे रोते रोते जब वो भागते भागते भी थक गया, he felt defeated, और वो एक जगह रुक गया. आँखों में आंसू भरे हुए थे और उस धुंधली आँख से उसको कुछ ब्राइट येलो ग्रीन कलर का कुछ कपड़ा दिखा. सो ही रैन टूवर्ड्स दैट, बट इट वॉज सिंपली अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर जस्ट टॉकिंग एंड लाफिंग फॉर द सेक ऑफ इट. दैट इज़, उन्हें किसी के रोने से, किसी के दुख से, किसी के खोने से कोई मतलब नहीं था. वो अपने ही इन्जॉयमेंट में बिजी थे. और वो क्यों भागा बच्चा इस ग्रुप की तरफ? क्योंकि शायद उसके पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसे ही सिमिलर कलर के क्लोथ्स पहन रखे होंगे. भीड़ में जब आप किसी को ढूंढते हो, सो द ओनली थिंग यू कैन फाइंड आउट पर्सन विद द हेल्प ऑफ हिज फिजिकल एट्रीब्यूट्स और द क्लोथ्स जो प्रोबेबली उन्होंने पहन रखे हैं. तो उसी वजह से ग्रीन और येलो, उस आंसू से भरी धुंधली आँख से उसको कुछ दिखा और वो बस उसकी तरफ भागा. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, "Mother, father," near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot, had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. Now, जब यहाँ उस ग्रुप में उसको कोई नहीं मिला, तो उसने देखा एक और भीड़ है, एक और लोगों का ग्रुप है जो एक श्राइन की तरफ बढ़ रहा है. वो भी उसी श्राइन की तरफ भागा.
पर वहाँ जब वो पहुँचा तो ही फाउंड दैट इट वॉज सो कंजस्टेड, दैट इज़ कंजस्टेड मीन्स ओवर क्राउडेड, कम्प्लीटली टोटली पैक्ड। तो वहाँ पैर क्या, तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन वो जो डर उसके मन में था अपने पेरेंट्स को खो देने का, अभी तक उसे मिले नहीं थे, इसलिए उस डर ने उसको कुछ भी करने से नहीं रोका। और वो बेचारा उतने बड़े आदमियों के बीच में से, बड़े लोगों के बीच में से, उनके पैरों के बीच में से होता हुआ, भागता हुआ किसी तरह की कहीं कोई साइन मिल जाए, बेचारे ने कोशिश करी। बट दोज हेफ्टी मेन with murderous eyes, the way they were jostling each other, that is they were pushing each other, धक्का मुक्की, इतनी भीड़, तो उस सब में वो बेचारा गिर गया। लोगों के उस धक्का मुक्की में वो लोगों के पैरों के नीचे गिर गया। स्टैम्पीड सुना है, नीचे ज़मीन भीड़ भड़क्के में जब एकदम भाग दौड़ मच जाती है, कुछ लोग भागते भागते गिर जाते हैं, नहीं तो धक्के से गिर जाते हैं और बाकी लोग उनके ऊपर चढ़ के निकल जाते हैं। सेम इस बच्चे के साथ हुआ। और जब ऐसा इस बच्चे के साथ हुआ तो ये बहुत ज़ोर से चीखा रोते हुए, मदर फादर। और ये आवाज़ सुनी एक आदमी ने, बड़ी मुश्किल से उस भीड़ में this man picked this child up into his arms and brought him out from that crowd. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब ये आदमी उस बच्चे को वहाँ से उठा के लाया और उसको भीड़ से बिल्कुल अलग निकाल के लाया और पूछा कि वो क्यों रो रहा है, वो किसका बच्चा है और वो कैसे खो गया, कहाँ है उसके पेरेंट्स। पर उस बच्चे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ रो रहा था और पहले से और भी ज़्यादा ज़ोर से रो रहा था और सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on this horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and only shouted, I want my mother, I want my father. लेकिन अब इस आदमी को लगा कि पहले ये बच्चा चुप तो हो। अब जैसे छोटे बच्चे को चुप करने के लिए उसे खिलौना पकड़ा देते हैं या उसे घुमाने बाहर की तरफ बाहर ले जाते हैं घर से, या कोई और उसको गोद में ले लेता है, उसी तरह इस आदमी ने भी, इस अच्छे आदमी ने भी कोशिश करी कि ये बच्चा किसी तरह चुप हो जाए। उसका डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माइंड, उन्होंने पूछा क्या तुम इस राउंड अबाउट पे झूलोगे, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। बट वो बच्चा सिर्फ रो रहा था और सिर्फ एक ही बात रिपीटेडली बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। So for today I'll stop here. While reading, I have underlined the difficult words and you will also see the image in the video. So if there are more difficult words to which you do not know the meaning, write them in your practice copy. Try to find out the meaning from dictionary or from Google and make sentences. This exercise will help you improve your grammatical errors which you usually make while writing the answers. Plus it will also help improve your vocabulary. So children, I'll stop here and I hope that you will stay home, stay safe, and we'll meet together. So thank you for the day.